So good evening, everyone. My name is Praful, as most of us Good know me. evening, sir. Hello, Sneha. Good So evening, long, sir. so long. Yes, I know. Okay, so first of all, I will be wishing you a very best luck for your preparations for the upcoming examinations, your DGM and GST examination. Obviously, it's a golden opportunity because I guess DGM has these openings after many years. So this is certainly a big opportunity. Also, the seats are pretty high, so there is a very good better luck this year. Anyway, so in this class we would be studying. Acha, nobody is South Indian. Obviously, सगळे मराठी आहेत. तो आज मराठी इज रिअली अनकम्फर्टेबल. आपण मराठीत बोलू शकतो, सर. मला मराठीत बोलायची सवय नाही राहिली. हिंदी इज ओके. ओके. ठीक है. तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले सिलेबस से, विच इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप्स, basics of some well inventory, and if time allows I will be also talking about the hydrographs. Okay, so we'll start with the hydrogeological maps. So first of all, before I go to the topic, we need to understand what map is. Okay, if you understand what a map is, understanding hydrological map will be really easy. See, the first and foremost important thing is a map is basically a representation of the three-dimensional surface of earth on two-dimensional plane of paper, right? एक अर्थ के सरफेस को हमें पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ मैप, राइट? सो मैप हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वन इज दस वेरी सिंपल एज यू नो टोपोग्राफिक मैप, जिसे हम जानते हैं टोपो शीट के नाम से. दैट इज अ टोपोग्राफिक मैप. सो टोपोग्राफिक मैप रिप्रेजेंट्स द टोपोग्राफी, माने सरफेस में कहां पर एलिवेशन होगा, कहां पर डिप्रेशन होगा, कहां रिवर्स है, कहां चैनल्स है, वो दिखाएगा. उसके साथ में कहां पर थोड़ा लैंड यूज के बारे में बताएगा, कहां वेजिटेशन है, कहां एग्रीकल्चर है, कहां सेटलमेंट है, कहां अर्बन सेटलमेंट है, रोड्स, रेलवे लाइंस, पावर लाइंस, एटसेट्रा, राइट? दैट इज द टोपोग्राफिक मैप. Similarly, when you are talking about the geology, we do have different maps, different thematic maps in geology, like the geological map. Okay, in which again we have some themes like lithological map, a map where you show different lithologies in your area with respect to their spatial references, obviously, and show the contacts between them. Then it is called as the lithological map. Similarly, structural map, where you represent the structural planes and lines on the basis of which structural trend lines can be drawn, and the idea of the deformation in the area could be made. That is a structural map. Similarly, I can have different contour maps. I can have different iso height maps, iso patch maps, etc. Okay, so we are having different types of maps on the basis of our requirement, right? So one such important map is called as the hydrological map or hydrogeological map. As far as this topic is concerned, hydrogeological map represents the hydrological conditions of the terrain. आपके एरिया में, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप ऑफ Jharkhand, sorry, Maharashtra. Okay, if you want to, if I want to create the hydrogeological map of Maharashtra, then instead of showing Deccan traps and Saucer group of rocks, Sakolis, and नीचे में थोड़ा धारवाड़, थोड़ा पेनगंगा, पाखाल, ये ना दिखाते हुए, we will focus on the aquifer characteristics. Okay, aquifer characteristics, meaning that जब आपका बनाया हुआ सो कॉल्ड हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप लेके मैं फील्ड पे जाऊं, तो अगर मैं अपने आप को मैप पे लोकेट करूं, देन आई शुड बी एबल टू टेल कि इस जगह पे रॉक कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइड्रोजियोलॉजी. माने वो रॉक एक्विफर है ना, एक्विटार्ड है ना, एक्विक्लूड है, उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कितनी रहेगी, ट्रांसमिसिविटी कितनी रहेगी, वेदर इट इज कंसोलिडेटेड रॉक और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप बताता है. So for a person called as hydrogeologist, who basically studies the distribution, occurrence and quality quantity of groundwater, उसके लिए hydrological map is the most important tool. Okay, and in 2023, groundwater is most important because almost 2/3 of the world's freshwater reserves are represented by the groundwater. So groundwater maps are extremely important, and all the countries, obviously not all, most of the countries in the world are following UNESCO's directions for the hydrogeological maps.
So most of the hydrogeological maps across the countries are similar. They have similar representation, they have similar legends and symbols, etc. Okay, so let's start with our topic, hydrogeological maps. Okay, if you have any question, you can stop me and ask. Okay, we can discuss, not an issue. Just a second, it's opening up. Okay, this must be full screen now. I'll put myself in the top card. Okay, so talking about the hydrological map or hydrogeological map. Okay, this is okay. You can use this PPT, okay, as notes as well. Okay, because I know उसमें मैंने text थोड़ा ज़्यादा भर भर के डाल दिया है. The reason is इतना अभी इतना टाइम था नहीं कि मैं PPT और PDF दो अलग अलग बना पाऊँ. So मैंने PPT में थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा डाला है. So you can use the same PPT as a notes as well. Okay. So I guess PDF शेयर भी कर दिया प्रणव सर ने. ठीक है. हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप जो होता है वो आपके रॉक को रिप्रेजेंट करता है उसकी वाटर बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली. Okay, so as we know, we have aquifers, we have aquithards, we have aquicludes. Okay, we have the aquicludes and we have the aquifuge, etc. Okay, so we are trying to show our rock, our lithology in terms of its water bearing capacities. Okay, so that is also called as the aquifer mapping. It is a multidisciplinary scientific process where we combine geological, mane rock, okay, hydrogeological, mane fluid mechanics, okay, sometimes geophysical when we are using the geophysical methods like well logging or borehole logging, etc. Hydrological, now there is a difference between hydrogeological and hydrological. When we say hydrogeological, we are dealing strictly with the groundwater, whereas when we say hydrological, okay, we are just dealing with water. Now this could be your surface water as well. And when we are studying this subject called as hydrogeology, surface water is also extremely important because the source of groundwater is nothing but the surface water, let it be your lakes or rivers or glaciers or any other water body. And the quality data which are integrated to characterize quantity, quality and movement of the groundwater in the aquifers or simply in the rocks. Okay. So here we are having one example of a hydrogeological map of India. Obviously scale बहुत बड़ा रहेगा, almost must be more than 2 million की scale है ये. Okay, we are trying to show the complete country and you see the legends. Okay, legends are always important. So they are trying to show groundwater potential, okay, जिसको आप yield या फिर specific yield के नाम से जानते हैं, liter per seconds में. Okay, liter per seconds में. So we can clearly see, okay, we can clearly see that the Indo-Gangetic plains are having maximum yield. Okay, maximum yield, ये जो dark color है that is more than 40. So माने 40 liters per second से ज्यादा का yield यहाँ पर है, right? And most of your country, okay, most country, you see this yellow part, okay, you see this yellow part, okay, this is showing almost 1 to 5 liter per second. So obviously we have scarcity of groundwater in India. Okay, now can you tell me what kind of rocks do we have in this yellow region? Okay, in this yellow region, what kind of rock do we have? You know the stratigraphy of India, everybody is post MSc. Yes, Sneha. Basaltic and granitic in origin. Correct. Basaltic and granitic. So if we are in this part, okay, in this part, we are having basaltic. But if I am in, let's say, let me put some blue color here. Okay. In this area, okay, the area that I am shading, that is the Bundelkhand granite gneissic complex. This area is the Chota Nagpur granite gneissic complex. Then this is the Bastar Craton. Okay. Then here we have the Dharwars and peninsular gneisses, etc. Here we have some Purana basins as well, and niche mein southern granitic terrain. All these rocks are consolidated metamorphic rocks.
so they do not have very high water bearing capacities. But in the northern part, what we can see, we are having overall very good yield, very good specific yield of groundwater. The reason is the rocks here are semi unconsolidated or totally unconsolidated, because of which we have very high groundwater potential in the northern part of India. Similarly, if you see in higher elevations, okay, this orange color you can see where we have very bad condition of the groundwater yield. Groundwater potential is very low. Those are the hilly areas. Okay, those are the hilly areas. Why do we have low groundwater potential in the hilly areas? Do you have an idea? Because infiltration is low. Infiltration is low, correct, because runoff is very high. Runoff ज़्यादा हो जाता है because gradient है, तो runoff ज़्यादा, infiltration कम है. One more reason, you know, groundwater, the groundwater table follows the this thing, topography, right? It tries to follow the topography. So whenever is there hilly area, you will see that water table will try to climb up, but obviously it cannot mimic the surface. थोड़ा कम कर दो. It cannot mimic the surface, but you will see that it creates wedges along the peaks, because of which on the hilly areas you do not get groundwater. Besides it, you will get plenty of water. Okay. There are some important things written in this slide, like the hydrological maps, hydrogeological maps. They portray information on groundwater and the relevant rock bodies in relation with the earth surface. That is the topography. Okay, that is the topography. Okay, now the topic is preparation of hydrogeological maps. Okay, so पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट आर द कंडीशंस इन सर्टेन प्लेस और एरिया. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर. ओके, एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर. व्हाट इज द कंडीशन? मीनिंग दैट मेरे एरिया में, इस सर्टनली इस प्लेस में या इस एरिया में ग्राउंड वाटर का कंडीशन क्या है. सेकेंडली, जो मैं चाहता हूं वो किस एरिया में मिलेगा, राइट? आइदर एरिया में क्या है या फिर जो मुझे चाहिए वो किस एरिया में है. बोथ ऑफ दिस थिंग्स कुड बी आंसर्ड यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड एज hydrogeological map. Okay, if I go into details, I can go for quantitative and qualitative information as well, represented by the groundwater. Okay, that is why hydrogeological maps are extremely important. Okay, now you could mute it, please. Now, for the preparation of a hydrogeological map, what is the requirement? The first requirement is the adequate topographic base map. इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दिस विल गिव मी द स्पेशल रेफरेंस फॉर वर्क. ओके, मैं कहां पर हूं उसका रेफरेंस देगा. ठीक है. सेकेंडली, ये टोपोग्राफिक बेस मैप अगर है तो मुझे टोपोग्राफी ऑलरेडी रेडीमेड मिल रही है, जिसमें मुझे ड्रेनेज मिल जाएगा, ड्रेनेज डेंसिटी मिल जाएगा, ड्रेनेज का टाइप भी मिल जाएगा. अगर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हूं तो ड्रेनेज देख के मैं एक ओवरऑल वाटरशेड का एक बाउंड्री भी डिमार्केट कर सकता हूं. ठीक है. I need reliable hydrogeological and associated data from that particular area. If I am talking about Nagpur district for an example, then I need to have the hydrogeological data of that district, right? माने उस एरिया का एक जनरल ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द मेटेरोलॉजिकल डेटा, रेनफॉल किस मंथ में होता है, कितना वॉल्यूम में होता है, एटसेट्रा. ऑल दिस डेटा इज रिक्वायर्ड, दैट हैज टू बी रिलायबल सो दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट इट. Thirdly, a suitable representational scheme and a map legend. That is obvious. एक scheme होना चाहिए, क्या color code होना चाहिए, क्या symbols होने चाहिए, क्या map के legends होने चाहिए. ठीक है. This thing is very simple. Okay. Now let's go to a little bit important thing. A good hydrogeological map therefore includes careful analysis and interpretation of existing data. यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, that you do not always have to go to the field to create a map. जो अवेलेबल डेटा है उसका इंटरप्रिटेशन करने से ही आपको हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप का ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपका कवर हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू केयरफुली रीड द अवेलेबल एरियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, यू हैव टू रीड द एरियल इंफॉर्मेशन. नाउ वेयर कैन आई रीड दिस? फ्रॉम टोपोग्राफिक मैप,
orohydrographical map, meteorological and hydrological maps, geological maps, satellite images, and air photographs. Okay. Do you know what is orohydrographical map? Have you ever heard of this thing? No, sir. Okay. The word oro relates to mountains, right? The word oro comes from Greek, okay, relates to mountain. But when we use the word here oro, we generally mean height. Okay, generally we deal with the height. Okay, so orohydrographical maps represents the flow of surface water, or simply flow of water with height. Okay, you can nowadays we do not use the orohydrographical map, we simply use the slope maps. Okay, because obviously जहां पर slope होगा वहीं पे flow होगा. Okay, so we simply use the slope maps. Nobody is using orohydrographical map except for some people who just want to do that because they don't know how to create slope maps, because it is, in fact, slope maps are much more easier. Okay, then meteorological and hydrological map. हाइड्रोलॉजिकल मैप मतलब क्या होगा? आपका रिवर ड्रेनेज का मैप हो सकता है, वाटरशेड का मैप हो सकता है, वाटर डिवाइड का, बैरियर्स का मैप हो सकता है, वाटर बॉडीज का मैप हो सकता है. ठीक है. कंटूर मैप इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोलॉजिकल मैप विद सम मॉडिफिकेशंस. ओके. मेटियोरोलॉजिकल मैप माने इसमें आपका रेनफॉल का मैप हो सकता है, प्रेसिपिटेशन मैप हो सकता है. जियोलॉजिकल मैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप. ठीक है. जियोलॉजिकल मैप सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्यों हो सकता है? बिकॉज हाइड्रोजियोलॉजी डील्स विद द ग्राउंड वाटर, where groundwater is water which is stored within the rocks, and जहां रॉक्स आएगा वहां पे जियोलॉजी आएगा. सो हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए पहले तो आपको जियोलॉजिकल मैप को कंसल्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर देयर आर रॉक्स और नॉट. रॉक्स नहीं होना इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली, बट व्हाट काइंड ऑफ सरफेस कवर वी हैव. डू वी हैव रॉक्स और डू वी हैव अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लाइक इन केस ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. आपके एरिया में क्या है ये पहले देखना पड़ेगा. अगर आपका एरिया, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन झारखंड, okay, for example if you are in Jharkhand is completely made up of granitic gneisses, okay, and obviously some Gondwana basins are there, but the country rock is granite gneisses, okay, different granites, different gneisses, okay. So in such a rock you do not expect much of the specific yield of groundwater. Okay, so your study will be, or your hydrological map will have different orientation in Jharkhand, but in Uttar Pradesh it will have different orientation. Similarly, in Maharashtra you have the basalts, but depending on what kind of flow do you have in basalts, your hydrogeological map theme might change, because in some area you have massive basalts, in some areas you do have a lot of vesicular basalts. Okay, even if it is a vesicular basalt, whether there are amygdals or not, whether they are fully filled or partially filled, the theme will change. Okay, आपका रॉक कैसा है उसके हिसाब से हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप जो आप बनाएंगे उसका थीम आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. देन सैटेलाइट इमेजेस एंड एयर फोटोग्राफ्स, these are extremely important. Okay, these are extremely important because groundwater has very high dependency on the topography, and the satellite images, the digital elevation models, etc., all these will be helpful, okay, in identifying the topography, on the basis of which you can create many hillside map, slope map, drainage divide map, etc. Okay, आगे बढ़ते हैं. These are very simple things. Okay, now first of all we have to understand what is a topographic base map. Okay, we have to understand what is a topographic base map. ठीक है, base map. अब base map क्या होता है? आप जब किसी नए एरिया में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग टू माई होम इन रांची, ओके, if you are coming to my home in Ranchi, I just gave you my address that I'm living in Sansar apartment, okay, in Kadru. ठीक है. So what you will do, you will use Google Maps, right? So that way Google Maps will become your base map, because आप उसका यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे डालने वाले हैं, राइट? सो हम जनरली कोई भी मैप बनाते हैं, लेट इट बी हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप और लेट इट बी स्ट्रक्चरल मैप और लिथोलॉजिकल मैप लाइक वी आर डूइंग इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वी डू टेक अ टोपोग्राफिक बेस मैप. हम एक टोपो शीट ले लेते हैं, उससे अपना एरिया लेके आइदर उसको एनलार्ज करना होगा तो स्केल इंक्रीज करके हम उसको यूज करते हैं. ठीक है. सो टोपोग्राफिक बेस मैप होने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सर्व एज अ गाइड फॉर ओरिएंटेशन ऑन द सरफेस. ठीक है, माने मैं कहां पर हूं,
ठीक है, मुझे किस एरिया में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कितना मेरा एरिया है, कैसे मुझे उसे मैप करना है, उसके लिए टोपोग्राफिक बेस मैप एक गाइड के तौर पे यूज कर पाऊंगा. सेकेंडली इट विल बी अ सोर्स ऑफ यूजफुल हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ बिकॉज आई एम डीलिंग विथ ग्राउंड वाटर, आई नीड टू सी what is the features represented on the topographic base map that is showing me related to water. क्या हो सकता है, रिवर्स का नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, वाटरशेड बाउंड्रीज हो सकती है, मेजर हिली टेरेन हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं पे वाटर डिवाइड है तो वो मुझे टोपो शीट में दिख जाएगा, टोपोग्राफिक बेस मैप पे दिख जाएगा. ठीक है, कहीं लेक्स है, कहीं स्प्रिंग्स है, वो मुझे दिख जाएंगे. स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट. व्हाई? बिकॉज स्प्रिंग्स क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज अ स्प्रिंग? ऋषिकेश, डू यू नो व्हाट इज अ स्प्रिंग? वो रबर वाला स्प्रिंग नाही. झरे पाण्याचे. हा, पाण्याचे झरे, बट म्हणजे काय असतात ते? वॉटर टेबल आणि ग्राउंड सरफेस तिथे मीट होतात तिथे. एक्झॅक्टली. ज्या ठिकाणी वॉटर टेबल सरफेसला कट करेल त्या जागी काय होणार? बिकॉज सरफेसवर काय आहे, देर इज नो प्रेशर, 1 atmospheric प्रेशर, बट ग्राउंड वॉटरला काय प्रेशर आहे? कन्फायनिंग प्रेशर आहे. सो वॉटर विल इमिजिएटली ट्राय टू मूव्ह आउट ऑफ द रॉक. ओके, आणि आपल्याला एक पाण्याचा झरा मिळेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग. ओके, सो स्प्रिंग का डेफिनेशन, स्प्रिंगची डेफिनेशन थोडीशी लक्षात ठेवायची की ज्या ठिकाणी ग्राउंड वॉटर टेबल लोकल सरफेसला टच करेल, दॅट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग. ओके, अँड वॉटर विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द वॉटर. ठीक आहे. सिमिलरली बॉग्स, सिंगल्स, रिव्हर्स, क्रिक्स एटसेट्रा, हे सगळे फीचर्स आपल्याला टोपोग्राफिक बेस मॅप मध्ये रिप्रेझेंटेड असतात. ओके, बट हे सगळे मॅप कोणी बनवलेले आहेत? हे बनवले कार्टोग्राफरनी. ओके, कार्टोग्राफरनी. आता कार्टोग्राफर काय शिकलेला आहे? हा जिओग्राफी शिकलेला आहे. याला कार्टोग्राफी येते, याला हायड्रोजिओलॉजी किंवा जिओलॉजी येत नाही. ठीक आहे, तर यांनी जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, स्प्रिंग, बॉग, सिंकहोल, रिव्हर, क्रीक, नाला एटसेट्रा, हे क्लासिफिकेशन हायड्रोजिओलॉजिस्टच्या क्लासिफिकेशनला जनरली कोरिलेट करत नाही. ओके, सो हायड्रोजिओलॉजिस्टला फील्ड चेक करून, रन ऑफ रेकॉर्ड्सला चेक करून त्या जागेला कन्फर्म करायला असतं. ठीक आहे, बट एक आयडिया नक्की मिळणार की तिथे स्प्रिंग आहे की तिथे लेक आहे किंवा काही असो, अटलिस्ट देअर इज अन ऍक्टिव्ह वॉटर बॉडी. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, clearly the study of river network on topographic map or orohydrographical map, when coupled with interpretation of aerial and satellite imagery, will give you very important hint on geologic substratum. What is geologic substratum? शब्द थोडासा किचकट आहे. सिंपल, सबस्ट्रॅटम म्हणजे त्या जागेचा कोणता रॉक आहे, त्या जागेची काय लिथोलॉजी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रॅटम. ओके, then morphology, that could be topographic morphology or internal morphology of the rock as well. Okay, and the climatic setting. Okay, all obviously जर का तुमच्या एरियामध्ये ड्रेनेज डेन्सिटी खूप हाय आहे, याचा अर्थ काय आहे? तिथे नक्की एक वीक कोणता तरी रॉक असणार आहे. ठीक आहे, खूप वीक रॉक असणार आहे अगदी. ठीक आहे, मे बी क्लेई, सँडी रॉक असणार आहे अगदी. ठीक आहे. सेकंडली स्लोप थोडा जास्त असणार, नाहीतर एवढं डेन्स नेटवर्क बनणार नाही. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या एरियाची क्लायमेटिक सेटिंगही कळेल. ठीक आहे, क्लायमेटिक सेटिंग म्हणजे तिथे रेनफॉल जास्त असणार. ठीक आहे, रेनफॉल जास्त असणार, व्हेजिटेशन कमी असू शकतं. राईट, ह्या सगळ्या आयडिया तुम्हाला टोपोग्राफिक मॅपवरनं मिळू शकतात. दॅट इज वाय टोपोग्राफिक बेस मॅप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट टू स्टार्ट दी हायड्रोजिओलॉजिकल मॅप. ओके, नाव हायड्रोग्राफिक मॅप्स रिप्रेझेंट करताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, दॅट आपल्याला हायड्रोग्राफिक मॅप म्हणजे काय, त्या मॅपवर आपल्याला रिप्रेझेंट करायची आहे हायड्रोग्राफिक सिस्टीम. ओके, हायड्रोग्राफिक सिस्टीम. हायड्रो म्हणजे वॉटर, ग्राफिक म्हणजे स्पाशियल रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला पाण्याला स्पाशियली रिप्रेझेंट करायचं. यू हॅव टू रिप्रेझेंट द प्रेझेन्स अँड द वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, म्हणजे कुठल्या डायरेक्शनला फ्लो होत आहे, काय इंटेन्सिटीनी, ते तुम्हाला इथे रिप्रेझेंट करायचं आहे. ओके, सो
कुठल्याही एरियामध्ये गेल्यावर हायड्रोजिओलॉजिस्ट हायड्रोग्राफिक मॅप बनवण्यासाठी काय करेल? पहिले तो काय करणार? डिलिमिटेशन ऑफ दी वॉटरशेड अँड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरंट रन ऑफ रेजिम्स. डिलिमिटेशन ऑफ वॉटरशेड. वॉटरशेड म्हणजे काय? एक पर्टिक्युलर रिव्हर, एक पर्टिक्युलर स्ट्रीम, एक चॅनल किती एरियाचं वॉटर ड्रेन करतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज वॉटरशेड. फॉर एक्झाम्पल, या ॲडजॉइनिंग फिगरमध्ये मी रेड कलरनी जर का मार्क केलं तर यू विल सी की ही रेड लाईन जी आहे ती रिव्हर्सला डिवाइड करते. या रेड लाईनच्या आयदर साइड्सला रिव्हरचे डायरेक्शन्स ऑपोजिट आहेत. सो दिस इज दी वॉटरशेड बाउंड्री. ओके, दिस इज दी वॉटरशेड बाउंड्री. ओके, अँड एक ब्लू कलरनी जे, सॉरी थोडा हलका कलर घेतो, ही जी ब्लू कलरनी आपण ड्रॉ करतो दॅट इज दी मेन चॅनल ऑर द मेजर ड्रेनेज. ठीक आहे, मेजर ड्रेनेज. ठीक आहे, दिस इज हाऊ यू कॅन डिलिमिट दी वॉटरशेड. ठीक आहे, डिलिमिट दी वॉटरशेड. सेकंडली, यू कॅन डू दी स्टडी ऑफ आस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रीम नेटवर्क. ठीक आहे, स्ट्रीम नेटवर्क म्हणजे नद्यांची काय डेन्सिटी आहे, काय नेटवर्क आहे. डेन्स नेटवर्क जसं या डायग्राम मध्ये आपण बघतोय. ठीक आहे, रेअरर, मीडियम, हे असं झालं. ठीक आहे, ॲज वेल ॲज इट्स रिलेशनशिप विथ स्लोप, लिथोलॉजी अँड स्ट्रक्चर. ठीक आहे, हे पण आपण हायड्रोग्राफिक सिस्टीमचा पार्ट म्हणून कन्सिडर करतो. तर याची स्टडी आपल्याला करावी लागेल. ते आपल्याला हायड्रोग्राफिक मॅपवर रिप्रेझेंट करायचं आहे. कसं करणार? यू सी हिअर, जर का माझा बेस मॅप असा आहे, ठीक आहे, खालचा मॅप, ठीक आहे, जर का माझा बेस मॅपमध्ये ड्रेनेज असं दिसतंय, सो व्हॉट आय कॅन सी, इकडनं एक मेजर स्ट्रीम जाते आहे आणि तिला आयदर साइडनी पॅरलल नेटवर्कवर स्ट्रीम्स येऊन मिळत आहे. सो दिस इज सर्टन समथिंग कॉल्ड ॲज द ट्रेलिस ड्रेनेज पॅटर्न, राईट? ट्रेलिस, राईट. हे कधी डेव्हलप होतं? जेव्हा त्याच्या दोन्ही साईडला पॅरलल रिजेस असतील. सो वॉटर डिवाइड त्याच्या दोन्ही साईडला पॅरलल असेल तेव्हा असं एक काहीतरी बनतं, राईट? सो ही स्टडी आपल्याला कुठून मिळते? बेस मॅपवरनं मिळते. सो दिस स्टडी हॅज टू बी डन फ्रॉम द बेस मॅप अँड देन फ्रॉम द फील्ड. फील्डमधनं काय करणार? लिथोलॉजी आणि स्ट्रक्चर स्टडी करून. ठीक आहे, स्ट्रक्चर ही जनरली अवेलेबल जिओलॉजिकल मॅप्सवरून आपल्याला मिळतं. लिथोलॉजीसाठी एक फील्ड चेक इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, थर्ड इज स्टडी ऑफ ओरिएंटेशन अँड कंट्रोल ऑफ दी हायड्रोग्राफिक सिस्टीम. हे काय आहे? स्टडी ऑफ ओरिएंटेशन मतलब म्हणजे काय? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ओके, amount of discharge, etc. This will be the hydrographic system. These things are to be done in the field itself. You cannot do this from the base map or from the basis of any available data. Available data generally आपल्याकडे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज रन ऑफ डेटा अँड प्रेसिपिटेशन डेटा अवेलेबल असतो, बट दॅट हॅज टू बी चेक्ड बिकॉज हायड्रोग्राफिक मॅप इज एक्स्ट्रीमली डिपेंडंट ऑन द ड्युरेशन. तुम्ही 2023चा मॅप 2026 मध्ये यूज नाही करू शकत. ठीक आहे, बिकॉज द कंडिशन्स डू चेंज ड्रास्टिकली. इट इज हायली पॉसिबल दॅट बिकॉज इफ आय कन्स्ट्रक्ट अ डॅम, माय हायड्रोग्राफी माइट चेंज सिम्पली. सो एव्हरीथिंग इज टेम्पररी हिअर, नॉट लाईक जिओलॉजिकल मॅप, एकदा बनलं की जमलं. ठीक आहे, नेक्स्ट इज दी ऑक्झिलियरी इन्फॉर्मेशन, म्हणजे सपोर्टिव्ह इन्फॉर्मेशन. नाव सपोर्टिव्ह इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? In the initial phase of compiling a hydrogeological map, the author should collect information from all sources available. ठीक आहे, हायड्रोजिओलॉजिकल मॅप बनवण्याच्या इनिशियल फेजेस मध्ये आपल्याला काय करायचं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू डू रिमोट सेन्सिंग. ठीक आहे, रिमोट सेन्सिंगने काय होणार? आय विल गेट द डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल फॉर एक्झाम्पल. ओके, आय विल गेट द डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल. ठीक आहे, त्यांनी काय मिळणार? मला स्लोप मॅप मिळणार, त्यांनी मला हिलशेड मॅप मिळणार, ड्रेनेज मॅप मिळणार, त्याच्याने मी स्ट्रीम ऑर्डरिंग करेल. ठीक आहे, अँड आय विल गेट द स्ट्रीम मॅप. सिम्पल. फर्स्ट एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट पार्ट, स्ट्रीम कंडिशन. सेकंडली रिमोट सेन्सिंगचा यूज करून मी काय करू शकतो? एफसीसी इमेजेस बनवू शकतो. एफसीसी इमेज विल हायलाइट द अवेलेबल वॉटर बॉडीज. ओके, highlight the vegetation in the different way. Using different band ratios and different material mapping techniques, I can identify between whether the soil is saturated, moist or dry. ओके, सॅच्युरेटेड आहे म्हणजे मार्शी कंडिशन आहे, स्वॅम्पी कंडिशन आहे, किंवा मॉइस्ट आहे, जस्ट मॉइस्ट आहे, की टोटली ड्राय आहे, डेझर्टिक सॉइल आहे, हे पण मला माहिती पडेल.
ठीक है. सो इफ इट इज मॉइस्ट, याचा अर्थ ग्राउंड वाटर कंडीशन अच्छी है. इफ इट इज स्वम्पी, इसका मतलब नीचे का रॉक अच्छे से कन्फाइनली सैचुरेटेड हो चुका है, राइट. So I am getting information about the climate and basic information about the aquifer characteristics from the remote sensing itself. Secondly, geological maps and different reports. ठीक है, available geological reports. Meteorological म्हणजे rainfall data, okay, and hydrological information related to rivers, okay. Along with this, geomorphological, geophysical and soil science investigation is also important. ठीक आहे. जिओमॉर्फोलॉजिकल म्हणजे ऑब्व्हियसली हिल्स अँड व्हॅलीज अँड एटसेट्रा. ऑब्व्हियसली यू नो, हिल्सच्या वर जाणार तर तुम्हाला वॉटर मिळणार नाही. ठीक आहे. जिओफिजिकल, दिस विल गिव्ह यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द शॅलो सायस्मिक स्ट्रक्चर ऑर द शॅलो लेअरिंग, मिनिंग दॅट जर का त्या एरियामध्ये रॉक कॉन्टॅक्ट्स आहेत, हॉरिझॉन्टल कॉन्टॅक्ट्स आहेत किंवा इन्क्लाइंड कॉन्टॅक्ट्स आहेत, शॅलो डेप्थमध्ये कॉन्टॅक्ट्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्विफरच्या बाउंड्रीज काय असू शकतात ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जिओफिजिकल डेटामधून मिळेल. Soil science, basically about the soil conditions, okay, whether it is moist or not. Humic matter ची काय condition आहे, if there is humic matter or not, simply, or if it is there, what is the amount of carbon, etc. Okay, now we will see remote sensing not in detail but geological maps and meteorological part in little details in the upcoming slides. ठीक है. Next is geological maps and reports. So आपण पाहिलं की रिमोट सेन्सिंगचा यूज मी हायड्रोलॉजिकल मॅपसाठी कसा करू शकतो. सेकंडली, नाव वी विल सी जिओलॉजिकल मॅप्स, अवेलेबल जिओलॉजिकल मॅप्स आणि रिपोर्टचा यूज कसा करणार. ॲज आय सेड अर्लियर, hydrogeology is basically a branch of geology. So obviously geology is a cornerstone for any kind of hydrogeological work. काही करायचं असू द्या, तुम्हाला त्या एरियाच्या जिओलॉजीशी घेणं देणं आहे. And maximum dependence is on the lithology only. ठीक है. So careful examination of geological maps and reports is an indispensable step. म्हणजे सोडता येणार नाही अशी ही एक स्टेप है. हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए आपको जियोलॉजिकल मैप को रेफर करना ही पड़ेगा. ठीक है. क्यों करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इससे आपको रॉक के कैरेक्टर पता चलेंगे, वेदर इट इज कंसोलिडेटेड रॉक और नॉन. ठीक है. इफ इट इज कंसोलिडेटेड, वेदर इट इज सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक. जनरली इन जनरल मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स do not have good water bearing capacity. Sedimentary rocks, soft rocks, generally they have better water bearing capacities. So those information will be readily available with you if you have referred to geological map and the reports. Okay. Now, information provided by interpreting the geological map for hydrogeological mapping purposes generally comprise the two aspects. One, conversion of lithostratigraphic unit into hydrolithologic units. Okay. लिथोस्ट्रॅटिग्राफिक युनिटॉलॉजीला आपल्याला हायड्रोलिथॉलॉजी मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. हे काय असू शकतं? कॅन यू टेल मी? लिथोलॉजी को कन्वर्ट करना है हाइड्रोलॉजी में. Let's say geological map is saying calcareous sandstone. Okay, then it is having a silicified sandstone. Okay, a silicified sandstone. Okay, now if whole of my area is sedimentary, okay, why sedimentary? Because we do not focus a lot on hydrogeological maps of हार्ड रॉक टेरेन, बिकॉज वी नो कि उसमें पानी है ही नहीं, तो बनाने का कुछ मतलब नहीं है. सो हाइड्रोजियोलॉजी मोस्टली फोकस करेगा आपके सेडिमेंट्री एरिया को ही. ओके. कैल्केरियस सैंडस्टोन एंड सिलिसिफाइड सैंडस्टोन, बाय द एडजेक्टिव इटसेल्फ, calcareous and silicified, we know what could be the hydrogeological properties. Hydrological property of calcareous sandstone क्या होगा? This will mostly be an aquifer. Okay, this will mostly be an aquifer. Whereas silicified sandstone, it might be so compact that it will not take any water. Okay, so this could be the aquifuge. Okay, could be aquifuge. Okay, so I have to classify my available lithology into some another coding that deals with water bearing capacity. So either मैं उसको aquifer, aquifuge etc. ये बोल दूंगा, या फिर
मैं उसे परमिएबल, इम्परमिएबल एटसेट्रा में बोलूंगा, या फिर मैं उनकी यील्ड के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दूंगा, हाई यील्ड रॉक्स, मीडियम यील्ड रॉक्स और लो यील्ड रॉक्स और नो यील्ड रॉक एटसेट्रा, इसमें मैं उनको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई हैव टू कन्वर्ट माय अवेलेबल लिथोलॉजी symbology to the hydrolithological units on the basis of whether or not they can have the water. ठीक है, secondly, identification and selection of structural information, okay, which is necessary to describe and understand the aquifer and groundwater flow system. okay, स्ट्रक्चर को मुझे समझना बहुत जरूरी है। क्यों स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है? बिकॉज इफ देयर इज लेट्स से फॉल्टिंग, ओके, फॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, बताइए तो क्या टाइप के फॉल्ट्स होते हैं? दो टाइप्स, नॉर्मल एंड रिवर्स। नॉर्मल एंड रिवर्स। बट हमारे रेफरेंस के लिए नहीं है, राइट? सो इन हाइड्रोजियोलॉजी वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ओके, क्रॉस लीकिंग फॉल्ट्स और द क्रॉस सीलिंग फॉल्ट्स। ओके, अगर फॉल्टिंग के दौरान गॉज डेवलप होता है, ठीक है, गॉज इज क्ले लाइक मटेरियल दैट इज डेवलप्ड बिटवीन द टू स्लाइडिंग ब्लॉक्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल मोशन। ओके, सो अगर गॉज डेवलप हो जाता है तो दैट इज क्ले। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले? क्ले इज एक्विक्लूड। ओके, एक्विक्लूड, इट इंक्लूड्स द वाटर बट डज नॉट ट्रांसफर द वाटर। पोरस है लेकिन परमिएबल नहीं, राइट? सो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूं, ओके, let's say this is a sandstone, okay, that has been faulted, okay, normally faulted, okay, and there is development of fault gauge here. Okay, so what will happen? Groundwater will not be able to transmit from block A to the block B because the fault has gauge and the gauge has sealed the fault, because of which water will not be able to enter block B. So that will be the cross sealing fault. Similarly, there could be cross leaking fault. अब leaking fault क्या होगा? Obviously, by definition, by the word itself, it will allow the movement. How? There could be simple either brexia could might have been developed, or it could be very low temperature and high pressure faulting, because of which maybe उसके बीच में बस एक fault, थोड़ा सा बस brexia develop हुआ होगा, but no gauge. In such cases, block A and block P will exchange groundwater depending on where is the hydraulic gradient. Such faults will be the cross leaking faults. So if there is a fault, you have to identify what is happening with the groundwater flow. Okay, you have to identify what is happening with the groundwater flow. So structural deformation is also extremely important while you are trying to create a hydrological map. Okay, now ये चीजें हम करेंगे कैसे? ठीक है, सो hydrolithological conversion of a geological map may be done at different levels. Okay, so first क्या है? Distinction between unconsolidated and consolidated. ठीक है, then permeable and impermeable rock is made on the basis on a crude or qualitative basis. ठीक है, समझ में आया? पहले तो हम हमारे एरिया को अनकंसोलिडेटेड एंड कंसोलिडेटेड में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे अगर मेरा एरिया सेडिमेंट्री है तो। अदरवाइज परमिएबल, इम्परमिएबल, इसमें मैं क्लासिफाई करने की एटलीस्ट डिस्टिंक्टिवली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ रॉक बॉडी इज कंसिडर्ड परमिएबल। ठीक है, अब जो परमिएबल है, बिकॉज जो परमिएबल है उसी में मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैज नो रोल इफ द रॉक इज इम्परमिएबल। सिंपल, ठीक है। If the rock is permeable, then continuous or discontinuous after the nature of groundwater bodies contained. ठीक है, whether it is continuous or discontinuous. ठीक है, secondly, whether it is porous or intergranular porosity is there or it is the fractured rock, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। सो permeable है, यहाँ पे भी नहीं रुकना है, उसके बाद में porous intergranular है या fractured, fissured एटसेट्रा, ये है, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे, इससे जो मेरा जियोलॉजी है और जो मेरी लिथोलॉजिकल कोड है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पोरस, फिशर्ड और कार्स्टिफाइड। ठीक है, पोरस माने समथिंग दैट हैज इनहेरेंट और यू कैन से जेनेटिक और यू कैन से प्राइमरी पोरोसिटी जिसमें रहेगी, दैट इज पोरस।
फिशर्ड जिसमें सेकेंडरी पोरोसिटी डेवलप हुई हो, ठीक है, कार्स्टिफाइड जनरली जहां पे कार्बोनेट एक्टिविटी हुई हो, ठीक है। सो पोरस क्या रहेगा, ग्रेवल, सैंड, स्कोरिया बेड्स एटसेट्रा, दोज आर पोरस, ठीक है, बिकॉज दोज आर द प्राइमरी पोरोसिटी. Then sandstone, marlstone, basalt, this could be fractured, fissured, okay. Then those will be fissured rocks. Then limestone, dolomite, gypsum, those are called as the karstified because there will be large solution sinkholes. Okay. Moving on. Secondly, what I will do, classification of the rock units can be then refined on the basis of permeability considerations. ठीक है. अब पहले मैंने क्या किया, रॉक को मैंने सिंपली वाटर बियरिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन उसे फिर से एक बार रिफाइन करूंगा. अब मैं क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, अभी मैं रिफाइन कर रहा हूं. किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी कंसिडरेशन, ठीक है. ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम प्योर एनालॉजी बिटवीन जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी. कैसे करेंगे, कौन सा लिथोलॉजी है एंड क्या के वैल्यू है. व्हाट डू यू मीन बाय के वैल्यू, आपको पता है, पता ही होगा ऑब्वियसली. कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम हाइड्रोजियोलॉजी में. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. करेक्ट. ये क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. ओके, माने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ग्राउंड वाटर फ्लो करेगा, दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है. इन दोनों को रिलेट कर, अगर डेटा अवेलेबल है तो इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा, ठीक है. उसके हिसाब से मैं अपने एरिया को फिर से सब डिवाइड करूंगा. कैसे करूंगा, परमिएबल फॉर्मेशंस वेयर के वैल्यू इज लार्जर देन 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. Okay, they will form the important aquifers of high permeability and productivity. उसमें yield ज्यादा रहेगा. Then semi-permeable formations 10 to the power minus 6 से लेके 10 to the power minus 9, ये values आप याद रख सकते हैं. These are the less productive aquifers. Okay, these will be subdivided into two. One will be the relatively thick aquithards. Second, resistant layers in multi-aquifer systems. Okay. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है. दिस आर ऑल्सो पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल, बट दिस आर मच मोर कॉमनर, दिस इज रिलेटिवली रेयर, ठीक है. नाउ इन द एरियाज ऑफ अनकंसोलिडेटेड पोरस सेडिमेंट, जैसे गंगा प्लेन्स, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ओके, इवन मोर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसमिसिविटी कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल मैप, राइट. लेकिन अब इसके लिए क्या लगेगा, व्हाट डू यू नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन के एंड टी. इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है ऋषिकेश. Okay, this is the equation, transmissivity is equals to k into d, where d is thickness, okay, where d is thickness of the particular body, particular rock dimension. But इसके लिए आपको क्या चाहिए, this requires good knowledge of the depth dimension and transmissive value derived from guess may be unreliable. Okay, ये unreliable हो सकता है, क्यों, because I do not know how deep is my rock, ठीक है. इसकी वजह से this could be little unreliable, but ये हम कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हम कहां पाए, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स में, तो वी कैन इजीली गेट द थिकनेस. ओके, वी कैन इजीली गेट द थिकनेस. कैसे करेंगे, सिंपल साइस्मिक स्टडी से. ओके, सिंपल साइस्मिक स्टडी से मुझे डेप्थ मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द कॉलम. सो मुझे डी मिल गया, टी का वैल्यू मेरे पास आराम से निकल जाएगा, बिकॉज के वैल्यू है एंड डी वैल्यू है. सो आई कैन यूज द फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू के डी एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी. सो मैं डायरेक्ट ट्रांसमिसिविटी भी क्रिएट करके अपने हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप पे रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है. नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, अगेन दिस विल आल्सो बी गिवन बाय माय जियोलॉजिकल मैप ओनली. ओके, इससे मुझे दो चीजें मिलेगी. एक, जियोमेट्री ऑफ द एक्विफर. कैसे, आई जनरली कंसिडर ऑल द एक्विफर्स टू बी लाइक दिस. व्हाई, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी.
ओके, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी क्या बोलता है कि सारा रॉक इनफाइनाइटली हॉरिजॉन्टल रहेगा अनलेस उसके बीच में कुछ आएगा. सो माने बेडिंग प्लेन शुड ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, बट स्ट्रक्चरली डिफॉर्म टेरेन में क्या मिलेगा? लेट्स से इफ इट इज फोल्डेड, द बेडिंग प्लेन इज डिफॉर्म्ड. सो मेरा एक्विफर का जियोमेट्री डिफॉर्मेशन के बाद में तो चेंज हो जाएगा, राइट? सो इफ आई एम इन मेटामॉर्फिक और हार्ड रॉक टेरेन, then I have to incorporate the structural information in my hydrogeological map. Otherwise, एक्विफर की जियोमेट्री मेरे को नहीं समझ में आएगी, बिकॉज हर जगह पे ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का एक्विफर हो, दिस इज नॉट नेसेसरी. एरिया कुड बी डिफॉर्म्ड. ठीक है. Similarly, the boundary condition of aquifer systems, which are often determined by the geological structures. जैसे अभी हमने फॉल्ट्स के कंडीशन में देखा. ठीक है. एक्विफर सिस्टम का कहीं तो बाउंड्री होगा, तो वो क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल अगर फोल्डेड है, ठीक है, अगर रॉक फोल्डेड है, तो ग्राउंड वाटर कहां पर रहेगा? फोल्डेड सीक्वेंस में ग्राउंड वाटर कहां कॉन्सेंट्रेट करेगा? In the limb area. इन द लिम्ब. देखो लिम्स में कैसे जाएगा? लिम्स में देयर इज द एक्टिव कंप्रेशन, राइट? जो आपका सिग्मा 1 इधर से आ रहा है, राइट? सो एनी फ्लूइड विल ट्रेवल टू सिग्मा 3 डायरेक्शन, राइट? सो हमेशा ये जाएगा हिंज के तरफ. ठीक है. तो ग्राउंड वाटर हमेशा आपको यहाँ पर मिलेगा. आपको पेट्रोलियम जियोलॉजी जो आपने पढ़ा होगा, तो आपको उसमें ट्रैप्स याद होंगे, राइट? तो फोल्ड की हिंजेस जो होते हैं, दोज आर द वेरी आइडियल प्लेसेस फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लूइड. सो अगर पेट्रोलियम जा सकता है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर भी जाएगा ही, राइट? सो यहाँ पर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 3, टुवर्ड्स सिग्मा 3 जाएगा. सिग्मा 1 पे कोई फ्लूइड कभी भी नहीं रहेगा. यहाँ पे तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन इधर होगा. सो फ्लो विल बी टुवर्ड्स द हिंज. ठीक है. सो अगर मैं स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता हूं, तो क्या होगा? मुझे ये एक्विफर मिल जाएगा हिंज में, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि भैया मेरे को तो पानी मिल गया. ठीक है, पानी मिल गया. और जब मैं इसमें वेल डालूंगा, देन आई विल सी दैट आई डिड नॉट गेट द ग्राउंड वाटर, आई ओनली गॉट टेम्पररीली पर्ज्ड एक्विफर. ओके, सो दैट विल बी रॉन्ग इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू कंसिडर द स्ट्रक्चर इन योर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप. ओके. हेलो सर. सर Yes. फिर एक्सटेंशन में क्या होगा? प्लीज अगेन, नहीं समझा. कंप्रेशन में सिग्मा 3 में पानी रहेगा, तो फिर एक्सटेंशन में कहाँ पे रहेगा सर पानी? ना 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 ना, माने सिग्मा 3 में पानी रहेगा मतलब, आई एम नॉट, एक सेकंड, आई एम नॉट सेइंग कि लिटरली सिग्मा 3 में पानी रहेगा. आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्ट्रेस ellipsoid, नो, if this is the ellipsoid, if a fold is like this for example, okay, obviously sigma 1 will be यहाँ पर, right? राइट. तो मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन तो यही रहेगा, सिग्मा 3, राइट? सो जहां पर मिनिमम स्ट्रेसेस है, फ्लूइड्स विल ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन. ओके. और यू कैन यूज द ऑपोजिट टर्म, fluids will try to go perpendicular to the maximum stress direction. So they could either be going to sigma 3 or sigma 2, but sigma 2 में stress कहाँ sigma 3 से ज्यादा है. So obviously water will not go towards sigma 2 as well. So there is only one possibility that water has to go to sigma 3. So अगर मैं fold में consider करता हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड लेता हूँ एक सेकंड. अगर मैं कोई फोल्ड कंसिडर करता हूँ, सो यहाँ पे रीजनल कंप्रेशन डायरेक्शन ये है. सो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1. सो सिग्मा 3 हैज टू बी दिस वन बिकॉज डिफ्लेक्शन सिग्मा 3 में हो रहा है. सो फ्लूइड्स विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स लीस्ट स्ट्रेस. ओके, दैट्स व्हाई यू विल गेट वाटर हियर, नॉट हियर. ठीक है, समझे उज्जवल? ओके. See, I don't know some of you, हाँ, तो I know there are some seniors, so गलती से अगर मैं आपका नाम ले लूँ तो प्लीज डोंट माइंड इट. मैं एक्चुअली बहुत सालों से कांटेक्ट में रहा, इसलिए ना कुछ लोग का नाम याद नहीं है. ओके, सो मैंने नाम ले लिया. ठीक है. सो इफ यू आर सीनियर, आई एम ऑलरेडी सॉरी. ओके, आई डू नॉट. मैं जूनियर हूँ.
I'm just giving a disclaimer. Okay, so गलती से अगर मैं आपका नाम ले तो please don't mind it ना. Anyway, so in this slide we have some ranges of permeability values. ये बस समझने के लिए है, ठीक है. Unconsolidated rocks and hard sedimentary rock, which are also called as consolidated rock, and then simply the hard rocks, okay, which are your metamorphic and igneous rocks. You see there are different possible values of hydraulic conductivity for different rocks. Okay, if you see sand, for coarse there is another value, for fine there is another value. And if you will see, unconsolidated rocks have maximum conductivity as compared to the hard rocks. Okay, so you have to make sure that you study these things and then you start creating hydrogeological maps. Direct field पे जाके अगर आप plot करना चालू करेंगे तो that will be impossible. Okay, that will be impossible. ठीक है. Now the third input was meteorological and hydrological information. ठीक है. अब ये क्या है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजियोलॉजिस्ट नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनफॉल पैटर्न. ठीक है, रेनफॉल पैटर्न. क्यों? बिकॉज रेनफॉल नहीं रहेगा तो रिचार्ज होगा नहीं, रिचार्ज नहीं होगा तो डिस्चार्ज भी नहीं होगा, वाटर ग्राउंड वाटर विल सिंपली बी एग्जॉस्टेड. ओके, सो आई नीड टू नो रेनफॉल पैटर्न, बिकॉज तभी मुझे डिस्चार्ज का पैटर्न पता चलेगा एंड रिचार्ज का पैटर्न पता चलेगा. लॉन्ग रन ऑफ टेम्परेचर्स, अगेन फॉर द सेम पर्पस, particularly freezing periods as well as evaporation and aridity, माने hotter climates. Okay, so freezing and heating periods, दोनों information मुझे चाहिए. Post monsoon, pre monsoon, if we are talking about Indian subcontinent, right? In addition, he should use hydrological data, knowing that the gauging stations with long term records. Okay, and consider particularly the runoff in drier periods. इसका मतलब क्या है, हमें गॉजिंग पीरियड ऐसा ही यूज करना है जिसके पास लॉन्ग टर्म के रिकॉर्ड्स हो. ठीक है, ये नहीं कि हमने 2 साल का डेटा ले लिया, उसके बेसिस पे आई एम एज्यूमिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग द हाइड्रोलॉजिकल मैप. मे बी जैसे होता है ना कभी कभी कि समर में बहुत कम गर्मी पड़ता है किसी साल. ओके, सो मैं उसका यूज करके हाइड्रोलॉजिकल मैप नहीं बना सकता, वरना क्या होगा, आई विल गेट रिलेटिवली हायर वैल्यूज फॉर द रिचार्ज एंड वेरी लेस वैल्यूज फॉर द डिस्चार्ज, which might not be true for the immediately next year. Okay, so I need to have long terms of record. Okay, long term records. Okay, again this information forms the background for the understanding of groundwater conditions in your study area and interpretation of groundwater flow system, chiefly recharge and discharge, as I said. Okay, now हाइड्रोलॉजिकल मैप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जनरली आपका हाइड्रोलॉजिकल मैप 3 इंपॉर्टेंट काइंड की इंफॉर्मेशन को रखता है. ये क्या है? वन इज द सिंपली द एटीट्यूड ऑफ एक्विफर इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ, एल्टीट्यूड, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्विफर. ठीक है, इस डेप्थ में आपका एक्विफर है सरफेस से. ठीक है, उसका एल्टीट्यूड माने उसका मीन सी लेवल के रेफरेंस में कहाँ है. ओके, वेदर आई एम इन हिली एरिया और वेदर आई एम इन प्लेन्स, वेदर आई एम इन प्लेटो एटसेट्रा. ठीक है, उसका क्वालिटी, ठीक है, वेदर हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर है, अल्कलाइन है, एसिडिक है, एटसेट्रा. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर माने कितने एरिया में इस एक्विफर का एक्सटेंट है, वेदर इट इज पर्ज्ड, ओके, एटसेट्रा. Second component is the geological framework, rock type, structure, extent of aquifer and hydrogeological units. These will be represented on your hydrogeological map. Okay, thirdly, hydrographic network related to groundwater discharge or recharge. Hydrographic network माने क्या? रिवर पैटर्न. ठीक है, रिवर्स का एक नेटवर्क. ठीक है, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमारा रिवर ही होता है, राइट? सो दिस थिंग विल ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप्स. ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट अ रूल. दिस इज नॉट अ रूल. ओके, नाउ ग्राउंड वाटर फीचर्स विच विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन योर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप. ठीक है, ये सिंपल लिस्ट है. We will only talk whenever there is something new or something that is unconventional to your syllabus.
सो आपका हाइड्रोलॉजिकल मैप ग्राउंड वाटर के कौन से फीचर्स दिखाएगा, ये हमें ये स्लाइड एंड अगली स्लाइड में पता चलेगा। वो क्या दिखाएगा? फर्स्ट, प्रेजेंस, एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑब्वियसली, ओके, ऑफ ग्राउंड वाटर माने ग्राउंड वाटर है या नहीं है। सेकेंडली, एक्सटेंशन कितने एरिया में है, एंड कॉन्टिन्यूटी माने परमियाबिलिटी। सेकेंड, डेप्थ टू वाटर टेबल, ठीक है, मतलब वाटर टेबल का डेप्थ कितना है गिवन सरफेस से, ठीक है, रिलेटिव टू द सरफेस लेवल, सरफेस से कितना मीटर। हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट surface level, not the MSL. Okay. Third, height of the potentiometric surface, which is nothing but the water table. Okay, which is nothing but the water table in this case. Okay. Oh. Anyway, relative to the datum level, piezometric or water table contours delineation of areas with water table confined और artesian conditions, ये सारा हमें आपके मैप पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वाटर टेबल कंटूर्स हो गया, उसका पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस का डेप्थ हो गया, ये सारी चीजें आपका हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप में दिखाना है, ये हमें मैप करना है। फोर्थ, द फ्लो डायरेक्शन और द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दिस हैज टू बी रिप्रेजेंटेड। ये आप अगर देखेंगे तो जनरली छोटे छोटे ट्राइंगल से रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है, छोटे छोटे ट्राइंगल से रिप्रेजेंटेड होता है। इन सम केसेस यू विल सी अ डायग्राम लाइक दिस, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे डायोड्स होते हैं ना, ये डायरेक्शन से जनरली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम हाइड्रोलॉजिकल मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या जरूरी है? ऑब्वियसली दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप बना के कोई मतलब नहीं रहेगा अगर मैं उसमें फ्लो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिफ्थ, inferred or known macroscopic flow connections in discontinuous aquifers, ओके, जैसे दो सिंक होल्स के बीच का कनेक्शन, ओके, या फिर दो स्प्रिंग्स के बीच का कनेक्शन, या फिर दो एक्विफर्स है, ठीक है, दोनों सैचुरेटेड है एंड दे आर कन्फाइंड विद इन अ नॉन कंटेनिंग रॉक, ओके, जिस we generally call it as a dry rock, okay, or simply the aquifuge. Let's say there is an aquifuge, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, ओके, वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इफ इट इज देयर, ओके, जबरदस्ती नहीं है कि दिखाना है, अगर होगा तो दिखाना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक लेवल्स, ओके, माने हाई एंड लो लेवल्स विद डिफरेंट डेट्स, मतलब टाइम के हिसाब से कैसे ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर नीचे जाता है, वो नथिंग बट वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस, ओके, और ड्रॉ डाउन रिजल्टिंग फ्रॉम पंपिंग कंपेयर टू इनिशियल नेचुरल कंडीशन, माने पहले ऐसा था, उसके बाद में हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप की या फिर एक छोटा सा सिविलाइजेशन वहां पे सेटअप की, कॉलोनी सेटअप की, तो वहां पे हमने बहुत पंपिंग किया, ठीक है, तो उसका क्या डिफरेंस आया पोटेंशियोमेट्रिक में या फिर ग्राउंड वाटर टेबल में, वो भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिलिनिएशन ऑफ द ड्रॉ डाउन एरियाज, कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा पानी ले रहा है, ड्रॉ डाउन होने वाला एरिया, दैट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। सेवेंथ, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब कितना रॉक में कितना पानी है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन एरिया, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा आपके मैप में तो आपका ग्राउंड वाटर जो हाइड्रोलॉजिकल मैप है वो मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज एज एन एंड यूजर आई माइट बी यूजिंग योर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप फॉर समथिंग कॉल्ड एज अ वाटर बजट, ठीक है। लेट से मैं किसी ग्राम पंचायत से हूँ, लेट से मैं पंचायत सचिव हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका हाइड्रोलॉजिकल मैप चाहिए जिससे मैं अपना गांव का वाटर बजट डिसाइड कर सकूंगा, और आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है तो मैं कैसे क्या पता करूँ आपका एरिया में जो आपने मैप करके गए हैं, मुझे क्या पता कि उससे मैं खेतों में पानी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। पता चला कि इतना पानी था कि मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता था, बट बिकॉज आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यू अबाउट द ग्राउंड वाटर, मैंने वो छोड़ दिया, ओके। सो वॉल्यूम हैज टू बी गिवन। एट्थ, सेम वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर बट एट डिफरेंट सैचुरेशन लेवल्स, या इधर आप पंपिंग के हिसाब से दे सकते हो या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से दे सकते हो, ईयर वाइज दे सकते हो या फिर ईयर में सीजन वाइज आप दे सकते हो, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून, ठीक है। ऑब्वियसली वॉल्यूम विल नेवर बी एक्यूरेट। नाइन्थ, फ्लक्स एट द इंटरफेसेस ऑफ एक्विफर्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं?
फ्लो डेंसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द फ्लक्स. ओके, मतलब लेट्स से आई हैव टू एक्विफर्स ए एंड बी. ओके, ए एंड बी. सो ए से बी में जो वाटर फ्लो होगा, ओके, वो भी मुझे बताना पड़ेगा कि ए से बी में कितना एंटरिंग फ्लक्स है, कितना एग्जिटिंग फ्लक्स है. ठीक है, ए से बी में. सेकेंडली, अगर बी में मेरा वेल है, ठीक है, बी में मेरा वेल है, तो कितना मेरा फ्लक्स जा रहा है, माने कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो मुझे दिखाना पड़ेगा. और अगर कुछ रिचार्ज है, जो भी परकोलेशन है, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा. सो आई नीड टू शो एंटरिंग फ्लक्स, आई नीड टू शो द एग्जिट फ्लक्स. ठीक है. 10th, डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिचार्ज एंड डिस्चार्ज एरिया, ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा. कहां से ग्राउंड वाटर ज्यादा रिचार्ज होता है एंड कौन सा एरिया जो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर चुरा ले रहा है, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा. ठीक है. 11th, रिचार्ज फ्लक्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ मीटियोरिक वाटर. ये ऑब्वियसली रीजनली वेरिएबल रहेगा. दिस इज जनरली एवरेज वैल्यूज, ओके, पर यूनिट एरिया. ये दिखाना पड़ेगा, माने कितना इसमें मीटियोरिक वाटर, माने रेनफॉल वाला जो वाटर आएगा वो कितना रिचार्ज का रेट है, वो आपको देना पड़ेगा. सिमिलरली डिस्चार्ज फ्लक्स देना पड़ेगा. ये जनरली नेचुरल डिस्चार्ज आपको देना पड़ता है, बिकॉज जो एंथ्रोपोजेनिक डिस्चार्ज है या फिर जो आर्टिफिशियल डिस्चार्ज है, उसका कभी कोई नामोनिशा कोई उसका क्या कहते हैं, दीन ईमान नहीं रहेगा. आज कम ले रहा है, शायद कल ज्यादा ले ले. ओके, सो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जनरली स्प्रिंग्स एंड ड्रेनिंग रिवर्स. ओके, जब ग्राउंड वाटर टेबल इज अबोव द रिवर्स सरफेस, रिवर के बेड के थोड़ा ऊपर रहेगा अगर वाटर सरफेस के, तो ग्राउंड वाटर विल कंट्रीब्यूट वाटर टू द रिवर, सच इज कॉल्ड एज द ड्रेनिंग रिवर. ठीक है, ड्रेनिंग रिवर और द स्प्रिंग, दिस विल कॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. ठीक है. देन थर्ड, टाइप ऑफ स्प्रिंग डिस्चार्ज. ओके, परमानेंट स्प्रिंग है, इंटरमिटेंट है, या टेम्पररी है, सीजन वाइज आता है, एटसेट्रा, वो आपको देना पड़ेगा. उसके लिए आपको स्प्रिंग हाइड्रोग्राफ भी अटैच करने पड़ेंगे. कि क्या होता है हम आगे जाके भी देखेंगे. ठीक है. सेम क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर विथड्रॉन एट डिफरेंट लोकेशंस, ये भी आप दे सकते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर फिजिकल और केमिकल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन डिफरेंट एरियाज, ये भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है. ये देने से क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि कैसे कैसे रॉक से जा रहा है, एंड अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो आपको उसका, अगर इफ द पॉल्यूशन इज जियोजेनिक, दैट विल बी इमीडिएटली कॉट. ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी कोई अथॉरिटीज होंगी उन्हें प्लानिंग करने में आसानी होगी. लास्टली दी वाटर क्वालिटी डिफाइंड ऑन हाइड्रोकेमिकल क्लासिफिकेशन और वाटर यूजेज क्राइटेरिया. ठीक है, ये भी हमें इसमें दिखाना पड़ेगा. नाउ इसमें हमने 16 फैक्टर्स देखे. ओके, 16 फैक्टर्स, बट कैन आई रियली रिप्रेजेंट 16 फैक्टर्स इन वन मैप? ऑब्वियसली नॉट, राइट. सो क्या दिखाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वही हम दिखाते हैं. ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना दिखाएंगे, बट उसमें से कुछ कुछ चीजें विच आर लाइक विल ऑलवेज बी देयर, जैसे ये पहले 4-5 पॉइंट्स, ओके, these are the most important, those will always be there. But in cases you do not have the value of discharge and recharge, you can simply skip it. If you do not have any springs, you can skip it. Okay, if you do not have quality of groundwater, then you can simply skip it. ठीक है. Similarly, there are some hydrological or physiographical features that will be important. Okay, मतलब आपके ग्राउंड वाटर सॉरी हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप में ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा जो ग्राउंड वाटर से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है. ओके, तो उसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखानी पड़ेगी, व्हाट विल बी द लेयर्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड द एंड यूजर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिथोलॉजिकल मैप. ओके, मतलब नीचे में कौन सा रॉक है, सो एक्विफर का लिथोलॉजी क्या है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. Then extension, structure and geometry of the aquifers. Okay, rock bodies, particularly aquifers. ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा. इसमें you can give height of the base and top of the aquifer. Okay, thickness, location of the internal heterogeneities और inhomogeneities, कहाँ fault है, कहाँ fractures है, कहाँ zones है, barriers है, etc. ओके, ये चीजें आप बीच में दे सकते हैं. अगर कहीं पे एक बड़ा सा पेगमेटाइट वेन आ जाता है, सो इट विल ब्लॉक द चैनल. ओके, सो उसके बेसिस आपको एक्विफर को डिवाइड भी करना पड़ेगा. ओके, थर्डली वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स क्वांटिफाइंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज. ओके, परमियाबिलिटी, ट्रांसमिटिविटी, स्टोरेज एंड देयर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है.
सिमिलरली एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर द सैचुरेटेड जोन्स, ठीक है। इसमें आपको जैसे सॉइल्स है तो उसकी वाटर बेयरिंग कैपेसिटी वो भी उसमें आपको देना पड़ेगा। अनसैचुरेटेड जोन क्या रहेगा, ऑब्वियसली जो ऊपर पार्ट रहेगा, जो वडोस जोन रहेगा, उसमें आने वाली चीजों का जो भी कोई एस्टिमेटेड वैल्यूज रहेगा, दोस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क एलिमेंट्स, ये भी उसमें आपको देना पड़ेगा। 6, रिलेशनशिप बिटवीन रिवर्स एंड द एक्विफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको देना पड़ेगा। वेदर योर रिवर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग okay to the groundwater or taking water from the groundwater, this has to be represented in your map, okay, which is not directly groundwater, okay, but groundwater को control करता है इसीलिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड साइट विद डिस्चार्ज और रिचार्ज फंक्शंस, ठीक है, ये भी आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑब्वियसली, ठीक है। जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिक टाइप ऑफ स्प्रिंग्स एंड सिंक होल, ये भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि बिकॉज आपके एरिया में स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, सो नॉट नेसेसरी दैट स्प्रिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ फॉल्ट, नॉट नेसेसरी कि वो ग्राउंड वाटर का ही हो, प्रोबेबली इट कुड बी वोल्केनिक स्प्रिंग एज वेल, ओके। सो उसका जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिक टाइप भी आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मैंने आपका हाइड्रोलॉजिकल मैप देखा, उसमें आपने 10 गो स्प्रिंग लगा के रखा था, हम गए उस एरिया में, उधर देख रहे हो वहां कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, बिकॉज आपका जो स्प्रिंग आपने लगाए थे वो जेनेटिकली कुछ और था, ठीक है, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। हेंस जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिक टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जोन्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोजियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि होमोजीनस है या नहीं, ठीक है, फ्रीटिक है या कन्फाइंड है, और मल्टी लेयर्ड एक्विफर है, कंटिन्यूस एक्विफर है या डिसकंटिन्यूस एक्विफर है, ये सारी एक्स्ट्रा लेयर्स में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड फाइनली सारे एंथ्रोपोजेनिक फीचर्स ये आपको देने पड़ेंगे, जैसे कहाँ कहाँ पर वेल्स है, कहाँ पंपिंग स्टेशन है, कहाँ इंजेक्शन वेल्स है, आर्टिफिशियल रिचार्ज पिट्स साइट्स कहाँ है, कहाँ खेत है, कहाँ माइनिंग है, कहाँ सॉइल से ड्रेनेज हो रहा है, टनल, डैम, कैनल्स एटसेट्रा। ये चीजें क्यों देंगे, बिकॉज सेल्डम दिस थिंग्स विल क्रॉस कट योर वाटर टेबल, जिसकी वजह से ये सारी चीजें भी मुझे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि हमें कुछ चीजें हैं जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप में रिप्रेजेंट करना इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट, एंड कुछ है जो उससे रिलेटेड है बट देना पड़ेगा, ठीक है, मोस्टली जियोलॉजिकल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप्स, ओके। सो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप में ये रहेगा वो रहेगा, सो क्या रहेगा उसके बेसिस पे हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप अलग होगा, क्यों अलग होगा। अगर एंड यूजर चाहता है, फॉर एग्जांपल आई गो टू जीएसडीए महाराष्ट्र, ओके, एंड आई आस्क कि भैया मेरे को ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है, आई हैव अ स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आई वांट द हाइड्रोलॉजिकल मैप फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम्स, ओके, और एरिडिटी मैप, सो दे हैव टू गिव मी अनदर थीमेटिक मैप, ओके। सो टाइप्स क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है जनरल कॉम्प्रहेंसिव हाइड्रोजियोलॉजिकल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स पोटेंशियल मैप, जो अभी हमने सबसे पहला जो मैप देखा था दैट वाज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल मैप, ठीक है। अगर आप लेजेंड में देखें तो उसमें क्या दिया था, यील्ड दिया था, पोटेंशियल दिया था, सो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पैरामीटर मैप, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर इसमें मैप कर सकता हूँ, पोरोसिटी को मैं कर सकता हूँ, या फिर के वैल्यू को मैप कर सकता हूँ, या फिर ट्रांसमिसिविटी को मैं मैप कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कह सकते हैं, एक फ्रैक्चर्स को मैप कर सकता हूँ, ओनली लिनियामेंट्स को मैप कर सकता हूँ, दैट कुड बी अ पैरामीटर मैप। देन ग्राउंड वाटर सिस्टम मैप, दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ मैप, इसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, जनरली ये जो एरिया आएगा, ओके ओके। सिस्टम मैप्स, इसमें बहुत सारी चीजें रहेगी, इसमें लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर, इन सब का बहुत ज्यादा कंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, केवल मैप देने से नहीं चलेगा, ठीक है। लास्टली देयर आर सम स्पेशल एस्पेक्ट और पर्पस मैप्स, okay, such as vulnerability, suitability or protection maps. I have some maps in the after the I guess next slide में शायद है, you will see these maps, okay। कौन सा एरिया ग्राउंड वाटर के रेफरेंस में बहुत वल्नरेबल है, जहां से एक कुआं बनाना भी बहुत रिस्की हो सकता है, या फिर कौन सा एरिया जो इरिगेशन के लिए सुटेबल हो सके, ठीक है, तो सुटेबिलिटी मैप हो सकता है, या फिर प्रोटेक्शन मैप हो सकता है, कहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर प्रोटेक्ट करना है।
Okay. For example, this is one map showing physiographic features of Maharashtra. Okay. ये क्या है? This is orographic map basically. पहले इसी को orographic map कहते थे, right? अगर if you see the legends, okay, these are showing heights. Okay, these are showing the heights. So we know these are the Western Ghats where we have the highest mountains, and then we have three parallel ridges. Okay, three parallel ridges. Okay. Next is the relief map of Maharashtra. Okay, relief map माने कहाँ पर एलिवेशन है, कहाँ पर डिप्रेशन है. तो आप ये जो चीज देख रहे हैं, these are the elevations. If you see, there are some important rivers going on like this, right? Which are following the regional elevations. You see, elevation ऐसा है, elevation ऐसा है, and rivers are parallel, right? So rivers obviously because they follow the topography. Now third is the hydromorphological map of Maharashtra. Okay, hydromorphological माने hydrogeology plus geomorphology. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, so I get the hydromorphological map. Okay, so you see, इन्होंने रेड कलर में दिखाया dissected lateritic plateaus. Okay, dissected lateritic plateaus जो हमारे वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में है. ठीक है, देन दिस येलो पार्ट ऊपर में. Okay, south to Nurmada. Okay, we have the alluvial plains. Okay, then some green this area. Okay, you see, ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है, जो हमने रिवर्स देखी रिलीफ मैप में. ठीक है, ये जो रिवर्स हमने देखी, ठीक है, इनके पैरेलल. Okay, these are the undissected plateaus. Okay, then moderately dissected plateaus, and then highly dissected plateaus, which are nothing but your hilly areas. Okay, इतना मैसेज कौन कर रहा है बाबा? ठीक है, सो हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप जो रहेगा वो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग बनेगा. ओके, सो एज वी सॉ स्पेसिफिक पर्पस मैप, सो दिस इज वन प्रायोरिटाइजेशन मैप. ओके, दिस इज प्रायोरिटाइजेशन मैप फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज. सो मैं गया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास में, एंड मैंने बोला कि भाई साहब हमारे पास में बहुत बढ़िया सा एगो स्कीम है. ठीक है, उस स्कीम के लिए हमको आपका एक आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए एक मैप दे दीजिए, तो हम उससे ही एरिया में जाएंगे, वहां पे काम करेंगे. सो दे गिव मी दिस मैप. सो दे आर रिप्रेजेंटिंग हाई प्रायोरिटी एरिया, कि यहाँ पे तो भाई साहब पानी का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे आप दीजिए ब्लू कलर. ठीक है, जहां येलो कलर है वहां पे मॉडरेट प्रायोरिटी है. सो यू सी मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र नीड्स ग्राउंड वाटर. सिंपल, बहुत चाहिए हमको, ऑलमोस्ट हर जगह पे चाहिए ही है. ठीक है, सो इस चीज पे मैं क्लाइमेट भी ऐड कर सकता हूँ. कैसे? ऑब्वियसली इस एरिया में रेनफॉल कम होगा, समर्स बहुत लंबे लंबे चलते होंगे, राइट? सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा. सेकेंडली मैं लिथोलॉजी यहाँ से गेस कर सकता हूँ, यहाँ का जो रॉक होगा वो बिल्कुल पोरस नहीं है ना, परमिएबल है, राइट? सो ग्राउंड वाटर मैप बनाने से, कोई भी थीमेटिक मैप हो, उससे आप क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली there are some other maps which are closely related to hydrogeological maps. Okay, hydrogeological map, for example, this is the isoheight map. Okay, do you know what is isoheight? रेनफॉल मैप. Correct. Like you know the contour map, right? Contour maps, these are contour map. क्या होता है कंटूर? क्या होता है? a line joining points of equal elevation. ठीक है, similarly isoheight is a line joining points that receive equal rainfall. ठीक है, तो ये हमारा एक आइसोहाइट मैप है जो मुझे मेरे ग्राउंड वाटर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो आई कैन यूज दिस वन लेयर ऑफ आइसोहाइट एज वेल. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने सांगली डिस्ट्रिक्ट का मैप उठा के यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट? सो इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ. ठीक है, okay, do we have any doubts till now? No? Okay, then let's move ahead. We'll take like 5 to 10 minutes for this very small topic called as well inventory. ठीक है, well inventory. Do you know what is the meaning of the word inventory? क्या होता है inventory? मतलब क्या होता है?
जब अपने घर में राशन खत्म होने लगता है, ठीक है, या फिर जनरली मंथ के स्टार्टिंग में जब सैलरी आता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी घर का ओनर रहेगा, ठीक है, जो भी कोई घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, वो जनरली क्या करेगा, घर का जो राशन होगा उसको चेक करेगा, राइट, क्या क्या कितना कितना बचा हुआ है, ठीक है, उसका एक आइडिया ले लेगा, राइट, मे बी वो नोट डाउन करेगा। तो इसे हम कहते हैं इन्वेंटरी क्रिएट करना, कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट्स से 35 बुक्स। ओके, सो मैं क्या करूंगा, उसका रिकॉर्ड रखता हूँ कि मेरे पास 35 बुक्स है, लेट्स से कि माइक्रोस्कोप है, 40 गो पेन है, 20 गो पेंसिल है, 2 गो लैपटॉप है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेंटरी। इसका यूज क्या हो सकता है? अगर मेरे पास 30 बुक्स का इन्वेंटरी है तो इसका यूज क्या होगा? जब भी मुझे कभी कोई चीज को रेफर करना है, ठीक है, जब भी मैं किसी चीज का यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके खोजूंगा नहीं, मेरे पास इन्वेंटरी रेडी है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या है क्या नहीं है, तो आई कैन प्लान द स्टडी। मुझे पता है मेरे पास 30 गो बुक है, तो मैं सिंपली सोचता हूँ चलो भैया अब मैं यूपीएससी का प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास किताबें बहुत है, रेफरेंसेस बहुत है, तो मैं पढ़ सकता हूँ। ये कब पॉसिबल होगा? जब मेरे पास इन्वेंटरी होगा। ओके, सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज वेल इन्वेंटरी। ओके, वेल इन्वेंटरी। सो वेल इन्वेंटरी में क्या रहेगा, जैसे मैं राशन का इन्वेंटरी कर रहा था या फिर बुक्स का इन्वेंटरी कर रहा था, वैसे ही मैं वेल्थ का इन्वेंटरी करूंगा। ओके, सो वेल्थ की इन्वेंटरी में मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द फील्ड। ओके, ये सब ऐसे ही थियरी, इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा लिखा हुआ है, आप एज अ नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ, समझने में आसान पड़ेगा। ओके, this is one example. Okay, this is one good example of a well inventory. Well inventory is nothing but, okay, it is nothing but some data. Okay, of what? Different wells. ठीक है, अलग अलग कुओं का एक डेटा है। तो मैंने क्या किया, वेल नंबर लिया, उसका लोकेशन लिया, एंड देन आई हैव टू क्रिएट अ इन्वेंटरी और रिकॉर्ड ऑफ द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वेल। अब इन्होंने क्या किया है, टाइप ऑफ वेल किया है। ठीक है, इनका जो भी है एल एन यू एन, आई डोंट नो इनका ये रहा, डायमीटर ऑफ वेल, ठीक है, 12.8, देन 7, देन 6.5 एटसेट्रा। डेप्थ ऑफ द वेल, ठीक है, देन बेंचमार्क की मोस्टली हाइट होगा, देन वाटर लेवल ड्यूरिंग प्री मानसून, बीजीएल माने बिलो ग्राउंड लेवल, देन रिड्यूस्ड वाटर लेवल प्री मानसून, सिमिलरली water level during post monsoon, then reduced water level during post monsoon, then they have calculated the fluctuation in the groundwater table, etc. So इससे क्या होगा, इनके पास में एक एक वेल का पूरा पूरा डेटा रेडी रह जाएगा, राइट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज, दिस टेबल इज कॉल्ड एज द वेल इन्वेंटरी। अब इसका यूज क्या होगा, कौन इसका यूज करेगा? पॉलिसी मेकर्स, राइट। गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका यूज करेगा। क्लास में, ठीक, इसका यूज कौन करेगा? पॉलिसी मेकर्स करेंगे। ठीक है, अब जो इन्वेंटरी बनाते हैं हम, उसके लिए कुछ जनरली वी जनरली फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स, बट अगेन वेल इन्वेंटरी इज अ वेरी सब्जेक्टिव वे। कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके हिसाब से होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक योजना चलती है, क्या अटल जल संधारण योजना और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम एग्जैक्टली, अटल भूजल योजना। एग्जैक्टली, राइट, अटल भूजल। yeah, Atal Bhujal Yojana, right? So they have their own set of rules for the well inventory. Okay, so generally these are some rules which are generally followed in the preparation of well inventory. ये एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है, ये एरिया के हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कलेक्टर हूं मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, सो आई नीड टू हैव अ वेल इन्वेंटरी। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं डिस्ट्रिक्ट के सारे कुओं का इंफॉर्मेशन ले लूंगा, राइट। मुझे क्या चाहिए, ऐसी वेल्स चाहिए जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में। ये नहीं कि मैंने अपने नॉर्दर्न पोर्शन से 400 कुआं का डेटा ले लिया एंड सदर्न में जाके हम केवल केवल 2-4 वेल का डेटा लेके आ गए, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आई शुड हैव द वेल्स विच आर टैपिंग डिफरेंट एक्विफर्स। ठीक है, कोई शैलो होना चाहिए, कोई डीप होना चाहिए, कोई इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि मेरे पास रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है,
ये जो वेल्स है ये सारी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज हो रही हो, ऐसी वेल्स होना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से मैं क्वालिटी के बारे में भी कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, वरना क्या होगा, सारी मैंने पीने वाले पानी की वेल्स का ले लिया, लेकिन वहां पे इरिगेशन हो रहा था तो प्रोबेबली वो सूटेबल नहीं था, इंडस्ट्री के लिए था, लेट्स से एसिडिक वाटर था, थोड़ा सा सूटेबल नहीं था, राइट। सो मैं अपना पॉलिसी इससे क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। सो अलग अलग पर्पसेस की वेल्स होनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट इंक्लूड द वेल्स विथ पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी एज वेल, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पॉल्यूशन का क्या सिनारियो है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का मेरे पास एक इन्वेंटरी रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा, ताकि जब भी मुझे गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया आपके एरिया में XYZ योजना लानी है, प्लान करके हमको अगले हफ्ते दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, गांव गांव में जाके कुओं के स्टडी नहीं करूंगा। आई शुड हैव द इन्वेंटरी रेडी। ओके, इन्वेंटरी रेडी होना चाहिए। अब ये करने का सबका अलग अलग तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन वेल इन्वेंटरी। ओके, सो ये भाई साहब ने क्या करा है, कौन सी किया, ये वेल नंबर दे दिया, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड माने लोकेशन का दे दिया, उसके बाद में डेप्थ दे दिया, डेप्थ टू वाटर लेवल दे दिया, एंड फील्ड पे कैलकुलेट किया जा सके ऐसी पीएच वैल्यूज दे दी, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे दी। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, नाउ दे कैन डू एनीथिंग दे विश। ओके, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड कौन कर रहा है, व्हाट इज द अवेलेबल रिसोर्सेज, उस पे ये ठीक है। एनी डाउट्स इन द वेल इन्वेंटरी पार्ट? नो? ओके, वेरी गुड। Okay, now the last topic for today, no, that is the hydrographs. This is very important topic. Okay, but very simple, very very simple. Okay, hydrograph. Okay, hydro माने water, graph माने graphical representation. Okay, so hydrograph is nothing but a chart that displays changing hydrologic variable over time. हाइड्रोग्राफ में एक्स एक्सिस हमेशा टाइम रहेगा। नाउ दैट कुड बी ईयर, दैट कुड बी मंथ्स, दैट कुड बी इंडिविजुअल डे। ठीक है, इसका स्केल अलग अलग हो सकता है, बट वाई एक्सिस हमेशा अलग अलग रहेगा, कभी डिस्चार्ज रहेगा, कभी कुछ रहेगा, एटसेट्रा। इस पर्टिकुलर मैप हाइड्रोग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, वी आर हैविंग सर्वे डेटा ज्ञात near 500 meters. Correct. All the important, as Bhavan sir is saying, all different parameters related to the well, related to aquifer basically, are to be recorded. ठीक है, in the well inventory part. Okay. Now, talking about again hydrograph, ये particular example में हमने क्या देखा है, we are showing discharge for the different months. Okay, so यहाँ पे हमने 2-4 months में देखा है. So what we can see, हाइड्रोग्राफ में बीच बीच में कुछ पीक्स आएंगे। ओके, तो ये पीक क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस टाइम पे डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हुआ, मतलब पानी ज्यादा लिया गया है। सो आई कैन सी हियर कि जून में सबसे ज्यादा पानी लिया है, या मई में भी बहुत पानी लिया गया है, एंड आई कैन सी दिसंबर 1999 से लेके अप्रैल 2000 तक पानी बहुत कम लिया गया है, राइट। सो इससे क्या मुझे पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि इसमें ग्राउंड वाटर का यूज का क्या कंडीशन है इस पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ में। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से हाइड्रोग्राफ अलग अलग हो सकते हैं। सो आई हैव सम एग्जांपल्स हियर। स्ट्रीम डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब आने इन द अपकमिंग स्लाइड्स ना आई हैव सम हाइड्रोग्राफ्स which are created by USGS, okay, for the टियोगा रिवर। ओके, टियोगा रिवर का बहुत सारा हाइड्रोग्राफ्स का एग्जांपल्स है। ओके, तो फर्स्ट इज द स्ट्रीम डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। ठीक है, स्ट्रीम डिस्चार्ज का हाइड्रोग्राफ ये जनरली सबसे ज्यादा कॉमनली बनाया जाने वाला हाइड्रोग्राफ है। मतलब एक पर्टिकुलर रिवर कितना पानी बहा के लेके जाती है, अपने वाटरशेड से एग्जिट कितना पानी लेके करती है, उसका टाइम के साथ क्या चेंज है, उसका रिप्रेजेंटेशन इज द स्ट्रीम डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। सिंपल। सो इफ यू सी this Tioga River is almost remaining same during August 29, August 30. Then August 30 में अचानक से डिस्चार्ज बढ़ गया। ठीक है, देन अगेन
एक दिन में ये कम भी हो गया एंड वापस इट केम बैक टू इट्स नॉर्मल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ होगा? अगस्त 30 में क्या हुआ होगा? सडनली डिस्चार्ज बढ़ गया। फ्लड सर। फ्लड लाइक कंडीशन माने भाई बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ होगा बहुत कम टाइम में। ओके, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द रिवर, ओके, एंड दिस इज द वाटर शेड ऑफ द रिवर, ओके, बेसिन बाउंड्री। ओके, सो हम हाइड्रोग्राफ के लिए डेटा इस जगह से कलेक्ट करते हैं। ओके, आउटलेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज। यहां पर कहीं बीच में बैठ के नहीं करेंगे, ठीक है, आउटलेट में करेंगे, ठीक है। So this was my stream discharge hydrograph. Secondly, stream stage hydrograph. Okay, stream stage, stage मतलब क्या है इसका? वाटर का सरफेस का हाइट। ओके, रिवर में जो वाटर बह रहा है उसके सरफेस का हाइट। ओके, अब ओवर रेफरेंस डेटम, ठीक है, जो भी आप रेफरेंस लेंगे उसके हिसाब से, दैट कुड बी ए मीन सी लेवल और दैट कुड बी लोकल स्टेशन एज वेल, ठीक है। सो लेट्स से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यहां तक वाटर था, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे वाटर इतना ऊपर आ गया है। ये कब होगा? हाइट कब बढ़ेगा वाटर का? जब उसमें कुछ रिचार्ज हो जाएगा। जनरली कोई स्टॉर्म एक्सट्रीम रेनफॉल होगा तो इसका हाइट बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा बेसिकली। सो यू विल बी एबल टू स्टेज इट्स हाइट, ठीक है, उसके हाइट को मेजर करना है एंड उससे मुझे प्लॉट करना है। ओके, सो इफ आई डू दैट फॉर लेट्स से टियोगा रिवर, I got this curve. Now, if you see this curve and the last curve, okay, this is the stage and this is the, this is the stream discharge and this is the steam stage hydrograph. Both are same, right? You see, both are same. Can you tell me why both are same? Y axis का बस legend change हो रहा है, बाकी सब same है। Shape is exact the Same. same. सेम मंथ सर, सेम मंथ में एक ही टाइम पे। करेक्ट। सी, स्ट्रीम स्टेज में मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आई एम शोइंग द हाइट ऑफ द वाटर, ओके, वाटर सरफेस। आई एम शोइंग height of the water surface. Now because the discharge of the stream is related to its stage, माने height कितना है, that's why stage hydrograph and discharge hydrographs have a very similar shape. Okay, क्योंकि अगर फ्लड आएगा तो डिस्चार्ज भी बढ़ेगा एंड स्टेज का हाइट भी बढ़ेगा, that's why these are generally nothing but same. Okay, then I can similarly have the water temperature hydrograph as well. Okay, water temperature hydrograph हो सकता है। As the name indicates, इसमें क्या दिखाएगा? It will show how the temperature of the stream water has changed over time. ये दिखा सकता है, ठीक है। Now see, यहाँ पर लिखा हुआ है streams water, इसका ये मतलब नहीं कि केवल stream के लिए ही होगा, ये मैं ground water के लिए भी कर सकता हूँ if it is flowing. Okay, टाइम के साथ मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। So this is only one example. You see, यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है देन कम घट रहा है, ठीक है, फिर से कम हो रहा है घट रहा है, कम हो रहा है घट रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है? यू सी, एक एक डे का है, कुछ महीनों का या फिर सालों का नहीं है। ओके, एक एक दिन का है। सो व्हाट इज हैपनिंग? ऑब्वियसली डे टाइम में देयर इज हीटिंग एंड इन द नाइट देयर इज कूलिंग, सो you are getting the diurnal variation between the high and low temperature of the water. So that's how you will get this sine curve like this. Okay, you will get something like this. Okay, but अब इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, छोटा सा मजा आता है ऐसी चीजें करने में। यू सी, अगस्त 30 में क्या हुआ है? टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? हो सकता है कि उस दिन शायद थोड़ा स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन हुआ होगा। हो। करेक्ट, आइदर स्नोफॉल हुआ होगा या फिर ज्यादा बारिश हुई होगी जिसकी वजह से रिलेटिवली कोल्ड वाटर
आपकी टियोगा रिवर में आके मिक्स हो गया, जिसकी वजह से उस दिन टेम्परेचर वाटर का नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑफ विच यू गॉट a small disturbance or interruption in your hydrograph. Okay. Then pH hydrograph. Okay, pH hydrograph. So pH hydrograph में क्या दिखा रहा है? Tioga River again, same example we are showing. Okay, you see pH is somewhere around 5.5 to 6. Okay, then August 30 में ये suddenly बढ़ गया है. Okay, and then again slowly ये कम हुआ and it came back to its original. ठीक है. Just a second, please. ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? अगेन अगस्त 30 में ही पीएच बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? पीएच बढ़ा मतलब अल्कलाइनिटी बढ़ी, राइट? एसिडिटी कम हुआ, राइट? क्या होने से ऐसा हो सकता है? सी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टियोगा रिवर. ओके, हमने क्यों एक एग्जांपल पकड़ा है? ताकि हमें इंटरप्रिटेशन आए इस मैप्स का. ठीक है, इन मैप्स का इंटरप्रिटेशन हम समझ सके. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग? टियोगा रिवर जो है इसमें जनरली इतना कम पीएच रहता है. दिस इज ऑब्वियसली एसिडिक वाटर. ठीक है, टियोगा रिवर का वाटर एसिडिक है. क्यों है? बिकॉज दे आर सीइंग वहां पे एसिड माइन ड्रेनेज होता है. ठीक है, रिवर में एसिड माइन का जो वाटर है वो ड्रेन होता है, जो जनरली एसिडिक है. ठीक है, बट देयर इज शार्प इंक्रीज इन पीएच ऑन अगस्त 30. क्यों? बिकॉज उस दिन बहुत बारिश हुई थी ना. आपने देखा डिस्चार्ज मैप में भी ज्यादा था 30 के दिन, स्टेज मैप में भी ज्यादा था, राइट? टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आया. इसका मतलब उस दिन में वाटर एडिशन हुआ था. सो ये जो मेरा एसिडिक वाटर था इसमें प्रेसिपिटेशन मिक्स हुआ, मतलब रेन वाटर मिक्स हुआ, जिसका तो पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, राइट? सो जिसकी वजह से मेरा इफेक्टिव पीएच बढ़ के ऑलमोस्ट 7 के पास में चला गया. ठीक है, एंड अगेन जैसे ही ये बारिश बंद हुई, पानी धीरे धीरे घटा, वापस ये आदमी अपने नॉर्मल पे आ गया, राइट? सो दैट इज द पीएच हाइड्रोग्राफ. यहाँ पे हम दिखाते हैं कि पीएच पानी का टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ. ठीक है, सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाइड्रोग्राफ. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या दिखाता है? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मैं टाइम के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. ठीक है, सो दैट विल बिकम स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाइड्रोग्राफ. ओके, अगेन यू सी वेरी फनी थिंग. कंडक्टेंस ऑलमोस्ट 200 के आसपास था, देन सडनली ड्रॉप हो गया कंडक्टेंस. कंडक्टेंस कम हो गया एंड देन फिर से बढ़ा. क्यों हुआ ऐसा? अगेन जी, कंडक्टेंस कम चला गया. क्यों हुआ ऐसा होगा? बिकॉज कंडक्टेंस कैसे होता है वाटर में, ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे करता है? जब उसमें डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, राइट? पॉजिटिव एंड निगेटिव, तभी इनके मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट? चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. सो जो 30 तारीख को, अगस्त 30 को जो रेनफॉल हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ? रिवर वाटर जो था वो डाइल्यूट हो गया. ओके, रिवर वाटर वॉज डाइल्यूटेड, बिकॉज ऑफ विच ये जो आयंस है ये डाइल्यूट हो गए, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो कंडक्टिविटी भी रिलेटिवली कम हो गई. दैट्स व्हाई देयर वाज सडन फॉल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी which was recovered by a day only and it increased later. ठीक है, सिमिलरली प्रेसिपिटेशन हाइड्रोग्राफ. ओके, प्रेसिपिटेशन हाइड्रोग्राफ, इसमें हम दिखाएंगे रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर टाइम. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड. ओके, अब अगेन इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? टियोगा रिवर में ये 30 तारीख को देखिए प्रेसिपिटेशन हुआ है, मतलब बारिश हुई है अच्छी खासी. ठीक है, उसके बाद में बारिश है बट दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ओके, ये हमको दिखा रहा है कि एक दिन में बारिश हुई है. ठीक है, वेरी सिंपल ना, इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं आ रहा है. ठीक है, नो, हाइड्रोग्राफ जो होता है जनरली उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, हाइड्रोग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? एक होता है यहां से यहां राइजिंग लिम्ब. ओके, देन होता है द क्रेस्ट सेगमेंट. ओके, एंड देन द फॉलिंग लिम्ब. ठीक है, राइजिंग लिम्ब, देन द क्रेस्ट एंड देन द फॉलिंग लिम्ब. ओके, नेक्स्ट चलते हैं.
इसमें तो ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं। हाँ, एक सेकेंड। राइजिंग लीन क्या दिखाता है? ascending portion represents the rising discharge due to gradual increase in the flow in the stream। ठीक है, रिवर का डिस्चार्ज बढ़ने से राइजिंग लिम्ब डेवलप होता है। क्रेस्ट सेगमेंट शोज द पीक कंडीशंस, ये समझना बड़ा जरूरी है। पीक कंडीशन रिप्रेजेंट करता है आपका क्रेस्ट। जो आपका क्रेस्ट रहेगा बेल शेपेड कर्व, जनरली हाइड्रोग्राफ में मोस्टली यू विल गेट दिस थिंग। ओके, ये जो पीक रहेगा दैट विल शो यू द मैक्सिमम पॉइंट जहां पर डिस्चार्ज वाज मैक्सिमम। अब ये पीक आपका एक हो सकता है या फिर मल्टी पीक भी हो सकता है, मल्टीपिकेट हो सकता है। देन द फॉलिंग लिम्ब और द रिसीडिंग लिम्ब, उसके बाद में आपका जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। सो दैट इज अ सिंपल मॉर्फोलॉजी ऑफ योर हाइड्रोग्राफ। ओके, नाउ हाइड्रोग्राफ को क्या चीजें अफेक्ट करेगी, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसके लिए जो आई गेस आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट इसमें मैंने डाला है। व्हेनेवर यू गेट एक्स्ट्रा टाइम यू कैन सिंपली गो थ्रू इट। ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कौन से टाइप का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल है या स्नोफॉल है, उसके हिसाब से आपका हाइड्रोग्राफ चेंज होगा। ठीक है, रेनफॉल की इंटेंसिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपका हाइड्रोग्राफ चेंज होगा। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो सडनली आपको पीक मिलेगा एंड देन नीचे आएगा, तो आपका जो हाइड्रोग्राफ है वो कोनिकल शेप का बनेगा। ड्यूरेशन, अगर बहुत देर तक बारिश आती है, अगर रेनफॉल बहुत देर तक कंटिन्यू करता है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा डिस्चार्ज का, तो यू विल गेट अ ब्रॉड कर्व। ओके, लेकिन स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है तो क्या होगा, यू विल गेट अ वेरी पॉइंटेड पीक्स। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इसका मतलब क्या, अगर आउटलेट के पास में रेनफॉल होता है तो पीक बहुत जल्दी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला है, देखिए पीक बहुत जल्दी मिल गया, राइट। और वही अगर आउटलेट से दूर में यहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है एंड आउटलेट के पास में नहीं होता है, तो आपका जो पीक आएगा डिस्चार्ज का वो आपको ऐसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज आप हाइड्रोग्राफ यहां से मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज यहां पर मेजर करते हैं आउटलेट पे। सो अगर आउटलेट के पास में बारिश होगी तो डिस्चार्ज पॉइंट पे जल्दी डेटा आएगा, तो टाइम के हिसाब से यहां पर ही पीक बन जाएगा। बट अगर अपर पार्ट में रेनफॉल होता है तो आपका पीक थोड़ा सा बाद में आएगा। लेट से 1 दिन 2 दिन शायद लग रहा है पानी को यहाँ तक आउटलेट तक पहुंचने में। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ के बेसिस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बेसिन का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिन का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल में देखिए जो नीचे हमने बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पीक है या डबल पीक है। ठीक है, यहां पर सिंगल पीक है, इसका मतलब एक ही आउटलेट होगा। ठीक है, इसका एक ही आउटलेट होगा। अब सी डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 2 पीक्स है, इसका मतलब 2 आउटलेट्स है। एक ये आउटलेट हो गया मेन एंड ये सब आउटलेट हो गया विच इज विद इन द बेसिन। ठीक है, विच इज विद इन द बेसिन। ठीक है, सिमिलरली ब्रॉड अगर शेप आता है, ब्रॉड अगर शेप आता है तो कैचमेंट का शेप अलग रहेगा। और वही अगर फैन शेपेड पीक आता है, ठीक है, तो आपका कैचमेंट का शेप भी अलग रहेगा। ठीक है, सो आपका जो बेसिन है उसका शेप भी आप हाइड्रोग्राफ के बेसिस पे बता सकते हैं। ठीक है, बट अगेन दिस हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। साइज ऑफ द बेसिन, ओके, अगर आपका बेसिन का साइज बहुत छोटा है तो क्या होगा, टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी ही पीक आ जाएगा। ठीक है, और बेसिन बहुत बड़ा है तो आउटलेट तक डिस्चार्ज पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको पीक बहुत बाद में मिलेगा। ठीक है, स्ट्रीम का स्लोप भी आप बता सकते हैं, अगर बहुत स्टीप है तो जल्दी पीक मिलेगा, अगर बहुत जेंटल है तो बहुत बाद में आपको पीक मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली नेचर ऑफ वैली, सिमिलर थिंग। ठीक है, ड्रेनेज डेंसिटी, अगर ड्रेनेज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, पीक जल्दी मिलेगा। ठीक है, एंड रिसेशन लिम्फ विल बी वेरी स्टीपर। सिमिलरली अगर ड्रेनेज डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ जाएगा, राइट। पीक आने में बहुत टाइम लगेगा एंड बहुत ही ब्रॉड आपको मिलेगा, स्लो मूविंग राइजिंग लिम्ब मिलेगा। ठीक है, एंड वाइड बेस विड्थ मिलेगा, ये बेस विड्थ जो है मेरा वो इतना बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लैंड यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। कैसे, अगर वेजिटेशन उस एरिया में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज मुझे बहुत कम मिलेगा, बिकॉज वेजिटेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर।
ठीक है, पेड़ पौधे सारा पानी पी लेंगे तो आपके रिवर में ज्यादा पानी बचेगा नहीं। ठीक है, तो आपका जो पीक आएगा वो थोड़ा सा बाद में मिलेगा। ठीक है, या फिर पीक का हाइट बहुत कम मिलेगा, ये भी हो सकता है, ये जो सेकंड पॉइंट में दिखा रहा है। सरफेस डिप्रेशंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पॉन्ड्स, रिल्स एटसेट्रा, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल डिले द फ्लो पैटर्न। ठीक है, जो आपका पीक आता है उसका शेप भी चेंज कर सकता है एंड उसको डिले भी कर सकता है। ठीक है, अगेन इसमें भी क्या होगा, इट डिक्रीजेस द पीक फ्लो बिकॉज जो पॉन्ड्स रहेंगे, लेक्स रहेंगे, दोज विल ईट ऑल द वाटर, वो सारा पानी अपने में ले लेंगे, तो आपका डिस्चार्ज रिलेटिवली कम होगा, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, द सेम थिंग। हाँ, इसको एक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों में बड़ा एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज रहते हैं ऐसे इसमें। व्हाट इज अ यूनिट हाइड्रोग्राफ? ओके, यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, हाइड्रोग्राफ ऑफ सरफेस रन ऑफ अ कैचमेंट resulting from unit depth, okay, generally 1 centimeter of rainfall, okay, rainfall excess occurring uniformly over the watershed at uniform rate for the specified duration. So duration भी आपका एक फिक्स दिया रहेगा, उतने में जनरली 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस में कितना ड्रेनेज हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर बारिश आने के बाद में कितना डिस्चार्ज बना। ठीक है, अगर वो मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको हम कहते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना है बिकॉज यही चीजें हैं इसमें पूछने लायक, अदरवाइज हाइड्रोग्राफ में आई डोंट थिंक देयर कुड बी समथिंग दैट दे कैन आस्क, बट अगेन आई नोबडी नोज व्हाट दे विल आस्क। ओके, एंड दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ ना, दैट इज जनरली कांस्टेंट फॉर द वाटरशेड। ओके, क्यों कांस्टेंट रहेगा, कैन यू टेल मी, थोड़ा सा इसको सोच के बता सकते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरली वाटरशेड के लिए फिक्स रहता है, क्यों? सिंपली बिकॉज वाटरशेड का स्लोप, वाटरशेड का लिथोलॉजी, वाटरशेड का वेजिटेशन कंडीशन, ऑल दिस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज हो सकता है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये चीजें बस चेंज हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। बट मैंने क्या किया, मेरे सारे डेटा को मैंने ओनली 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल के लिए मैंने कैलिब्रेट कर दिया है। ओके, सो जो चीज वेरिएबल है मैंने उसी को कैलिब्रेट कर दिया, सो ऑब्वियसली यूनिट हाइड्रोग्राफ विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द वाटरशेड। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या रहेगा, ये मेरे वाटरशेड की जियोमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, बिकॉज इसमें जो भी वाटरशेड के नेचुरल पैरामीटर्स है दोज आर फिक्स्ड। ओके, ऑल दोज फैक्टर्स आर फिक्स्ड, बाकी के जो चेंज होने वाला है उसी को हमने कैलिब्रेट कर दिया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, बाकी देयर आर सम मोर थिंग्स व्हिच यू कैन सिंपली गो थ्रू, दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट आई हैव जस्ट एडेड। ओके, जैसे फ्लैशी हाइड्रोग्राफ क्या होता है एटसेट्रा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वेरी सिंपल। ओके, okay, so we'll stop here, it's already, I guess I'm already 20-25 minutes slower. Okay, so I'll thank you for listening to me carefully. Do we have any doubts we can discuss?